Hello everyone. Welcome to class 7 NCERT Geography Chapter 1 Our Environment. It's an interesting chapter where you all will find new things to learn, new terms and concepts. As you all have rise up to new level of 7 crossing class 6, you will surely be able to grasp new learning. Let us now begin with our chapter Environment, Paryavaran. This chapter in NCERT begins with a story of Ravi, who is a student of Standard 7. He goes to school after a long vacation and finds that the playground which is nearby his school is now under construction of residential buildings. He felt really disheartened with this change. His eyes were in tears as he knew that he now won't be able to see green grass, beautiful flowers, and butterflies. He discussed with his friends about this. In class, he also discussed with his social science teacher that what is environment? In response, she answered, in simple language, the surroundings of a living thing in which it exists is termed as its environment. Means हम अपने आसपास जो भी देखते हैं वह पर्यावरण है, environment है. Now with this introduction story, let us all come to our chapter whose topic is environment. Topics which we will cover here are natural environment, realms of the earth, means domains, then ecosystem, human-made environment and human-environment interaction. यानी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में जो हमारे आसपास रहता है, रीम्स यानी डोमेन्स जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये सब हो गए, इकोसिस्टम यानी कैसे हमारे आसपास में जो भी है वो रहते हैं, सरवाइव करते हैं, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जिसमें कि इंसान चीज़ें बनाता है और उसके द्वारा वो रहता है, और ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन जिसमें हम पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे. Then let's come towards the natural environment. The term environment comes from the French word environner, which means to surround. Everything around us, for example, things, places, nature, people, etc., comprises human-made and natural things. They all add up to our environment. हम अपने आसपास जो भी देखते हैं वह पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है. किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं. Our environment is made up of different components. These components can be classified into two broad categories: natural environment and human-made environment. Natural जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, naturally जो ग्रो करता है, naturally हम रहते हैं, ये natural environment है. प्राकृतिक human-made जिसमें कि हम चीज़ें बनाते हैं और उसमें फिर हम survive करते हैं. Then we are having this graph which is showing the components of environment. So environment दो parts में divide होता है, natural और human environment. Natural environment फिर दो parts में divide होता है, यानी biotic और abiotic, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं. Biotic यानी कि life, जिसमें जान होती, जिसमें जीवन होता है, वो उसको बायोस्फीयर भी कहते हैं. फिर abiotic यानी कि नॉन लिविंग, जिसमें कोई जान नहीं होती है, वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. इन तीनों के बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे. ओके. देन ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसमें जैसे लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव. यहाँ पॉजिटिव से मतलब है हम सकारात्मक तौर पे चीज़ों को जब बनाते हैं वो पॉजिटिव है, अच्छा. नेगेटिव यानी कि ह्यूमन कहीं ना कहीं इंसानी गलतियों के कारण अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो वो नेगेटिव कहलाता है. Let's come towards the components of environment, in which the natural environment in brief we are going to discuss. All gifts of nature such as land, water, air, plant and animals form a part of the natural environment. जो हम natural तरीके से देखते हैं वो ये उसको हम बोलते हैं.
इट इंक्लूड्स बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसा कि पहले मैंने बताया, बायोटिक यानी कि जिसमें जीवन होता है, अबायोटिक जिसमें कि नॉन लिविंग कहलाता है। देन लेट्स कम टुवर्ड्स द differentiation between biotic and the abiotic component. First of all, we will study about biotic. पहले हम biotic के बारे में समझेंगे कि वो आखिर होता क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। पहला, biotic means living environment, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें जीवन होता है। उसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स भी। Then abiotic. Abiotic means non-living environment. Its examples are land, water, air, rocks, etc. यानी कि वही लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब आपके अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, जो कभी बढ़ते नहीं हैं। हाँ, घट ज़रूर सकते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं तो कम करते जाते हैं, पर वो अपने आप से ग्रो नहीं करते हैं। Now let's come towards the domains, यानी realms of the natural environment. Children, we are studying everything related to natural environment, which is one of the component of environment. Okay. Then there are 4 domains of natural environment. यानी 4 होते हैं domains जो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। पहला लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा एटमॉस्फेयर और चौथा बायोस्फीयर। इस ग्राफ में आप देखेंगे डायग्राम में कि कैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर डिस्कस किया गया है। इन सब को हम एक एक करके डिटेल में अब पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि लिथोस यानी ज़मीन, स्फीयर यानी कि जगह, वह जगह जहाँ पर ज़मीन मौजूद होती है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। द आउटरमोस्ट सॉलिड लेयर of the earth consisting of soil and rock material is called lithosphere. It includes not only the land surface but also the ocean surface. The term lithosphere means rocky crust. It is made up of various types of rocks and minerals. हमारी अर्थ की ऊपरी ठोस परत या सतह को लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसमें मिट्टी और पत्थर मौजूद होते हैं। सिर्फ ज़मीन की ही नहीं, पानी की भी सतह इसके अंदर आती है। Then, what do you know about the plateaus? It has mountains, plateaus, plains, valleys, rivers and oceans. Mountains से क्या समझ में आता है? यानी नुकीले पहाड़ को हम माउंटेन्स बोलते हैं। प्लेट्यूज, चिल्ड्रन, प्लेट्यूज मीन्स व्हाट? इट्स अ टेबल लैंड एरिया। दैट मीन्स थोड़ा ऊंचाई होती है, फिर एक टेबल के जैसे सीधी परत आती है, फिर नीचे जाता है। जब नीचे की तरफ जाता है तो वो आपका प्लेन्स कहलाता है। दैट इज नोन एज द प्लेट्यूज प्लेन्स। वैलीज यानी 2 पहाड़ों के बीच की जगह जो खाली होती है, जो नीचे के समतल में रहती है, उसे हम वैलीज कहते हैं। रिवर्स एंड द ओशंस। Lithosphere provides land for building houses, roads, factories and also for agriculture. यानी लिथोस्फीयर बहुत ज़रूरी सतह होती है जिसमें कि हम मकान बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें हम रहते हैं, रोड्स बनती हैं, हम काम करने के जो कारखाने बनते हैं, एग्रीकल्चर जहाँ पर हम अपने लिए जो अनाज ग्रो करते हैं जिसके कारण हम सरवाइव कर पाते हैं, ये आपके लिथोस्फीयर यानी ज़मीनी सतह को कहते हैं। वी ऑल्सो गेट वेरियस मिनरल्स फ्रॉम इट। मिनरल्स यानी कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं जैसे आयरन ओर हो गया या कोल हो गया, जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, तो ये हमको लिथोस्फीयर से ही मिलती है। Then let's come to the second domain, that is atmosphere. एटमॉस यानी कि हवा। स्फीयर मीन्स वो जगह जहाँ हवा मौजूद होती है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट एनवलप्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। यानी हमारे अर्थ के आसपास की हवा की जो सतह, हवा जो फैली रहती है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस पिक्चर में जैसे आप देख रहे होंगे, अर्थ के आसपास एक लेयर बाय लेयर आप देख रहे हैं। इन लेयर्स को हम बोलते हैं, जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर कहलाती है। और
द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. ग्रेविटेशनल यानी अब आप बोलोगे हवा है तो हवा उड़ भी सकती है, नहीं. ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारी अर्थ होल्ड में रहती है, एटमॉस्फेयर होल्ड में रहती है. इट इज़ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस सच एज नाइट्रोजन जो 78% होती है, एंड ऑक्सीजन 21%. द रेस्ट 1% इंक्लूड्स आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. The atmosphere prevents the sun's harmful rays from reaching the earth's surface. ये एटमॉस्फेयर ही है जो हमको कहीं ना कहीं सन की हार्मफुल रेज से बचाता है. जैसे सन की रेस है वो 8 मिनट्स के अंदर हमारे अर्थ में आती हैं. अब ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है ये हमको प्रोटेक्ट करती है रिलेटेड टूवर्ड्स अल्ट्रावायलेट रेज या स्किन जो बर्न होती है उससे हमको बचाती है. इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट. दैट मीन्स दिन के टेम्परेचर में धूप के कारण जो गर्मी होती है या रात में चंद्रमा की रोशनी में जो ठंडक होती है ये कंट्रोल होता है एटमॉस्फेयर से. इट ऑल्सो कंट्रोल्स प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड सनशाइन. Without atmosphere, our earth would have been barren like other planets. Barren means lifeless. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता हमारी अर्थ में तो कहीं ना कहीं दूसरे प्लैनेट्स के जैसे हमारा प्लैनेट भी हो जाता जहाँ पर लाइफ मौजूद नहीं है. Let's comes towards the third topic, that is the hydrosphere. Hydrosphere means that part of Earth's surface which is covered by water. The hydrosphere is the total amount of water found on Earth. All water bodies such as oceans, seas, rivers, ice caps, glaciers, fresh water, groundwater together make up the hydrosphere. यानी जितनी भी पानी की सतह की जगह होती हैं ये आपकी हाइड्रोस्फीयर कहलाती हैं. हाइड्रो इटसेल्फ उसका मतलब होता है पानी और स्फीयर यानी कि इस जगह, वो जगह जहाँ पानी मौजूद होता है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. Then come towards the fourth topic, that is the biosphere of natural environment. Biosphere means, as you can see in this particular diagram children, atmosphere, lithosphere, hydrosphere. ये तीन तो हम समझ चुके हैं, पढ़ लिए हैं. एटमॉस्फेयर यानी कि आकाश, आसमान जहाँ एयर पार्टिकल्स होते हैं. लिथोस्फीयर यानी ज़मीनी सतह जहाँ पर सॉइल मौजूद होती है, पत्थर मौजूद होते हैं. और हाइड्रोस्फीयर जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी होती है. ये तीनों अपनी अपनी जगह अलग अलग इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कोई भी अपने एग्जिस्टेंस में अकेले सरवाइव नहीं कर सकता है. यानी अकेले एटमॉस्फेयर के दम पे हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, या अकेले लिथोस्फीयर पे रह के हम सरवाइव नहीं कर सकते, ना अकेले हाइड्रोस्फीयर पे. तो ये जो सेंटर आप देख रहे हैं बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर के सेंटर में जो बायोस्फीयर देख रहे हैं ये वो जगह शो करती है जब तीनों आपस से मिलते हैं और एक लाइफ एग्जिस्ट होती है. वो जो लाइफ एग्जिस्ट की जगह होती है वो बायोस्फीयर कहलाती है. जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं, बायो मीन्स लाइफ. जैसे बायोलॉजी जो होती है, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी. तो वो वैसे ही बायोस्फीयर है कि बायो मीन्स लाइफ और स्फीयर मीन्स जगह. वो जगह जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होती है, जहाँ हम जिंदगी जी सकते हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं. द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर. इट इज दिस बायोस्फीयर विच मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इस बायोस्फीयर के एग्जिस्टेंस के कारण ही हम ये कह सकते हैं कि अर्थ में लाइफ मौजूद है और ये यूनिक प्लैनेट. यूनिक यानी कि हमारे 8 प्लैनेट्स में किसी भी प्लैनेट में लाइफ नहीं है एक्सेप्ट अर्थ, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ 3 डोमेन्स एंड द बायोस्फीयर. द वर्ड comes from the Greek word bios means life and Latin word sphera means total range. Then come towards the ecosystem. An ecosystem can be defined as a community where all biotic and abiotic components come in close contact with each other to fulfill their needs. यानी कि इकोसिस्टम में हर एक जीव, चाहे वो
बायोटिक हो या अबायोटिक हो, जब एक कांटेक्ट में आते हैं और अपनी ज़रूरतें एक दूसरे से पूरी करते हैं, उससे हम इकोसिस्टम कहते हैं. इट कैन बी एज लार्ज एज द रेन फॉरेस्ट, grassland, desert, lake, rivers, or as small as pond. In every ecosystem, there is a perfect balance or equilibrium in the transfer of energy and matter among different components. In the diagram, you can see that we are having different formations of life. जहाँ ज़मीन भी मौजूद है abiotic, जहाँ पानी भी मौजूद है abiotic, जहाँ पर आप पक्षी भी देख सकते हैं, ट्रीज भी देख सकते हैं, लाइफ गिविंग कंपोनेंट्स भी देख सकते हैं. तो इन सब के टुगेदरनेस को हम बोलते हैं इकोसिस्टम. देन कम टुवर्ड्स द ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन एनवायरनमेंट आपका एक दूसरा टॉपिक है नेचुरल एनवायरनमेंट के अलावा. तो ह्यूमन से हमको साफ समझ में आता है कि जिसमें मनुष्य का शामिल होना होता है पर्यावरण के साथ, उसे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं. It is formed by human beings and their creations, such as roads, bridges, buildings, etc., and the social, economic, political, and other conditions in which they live. In the picture, you can see very well बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस ये हमने बनाए हैं, ब्रिजेस हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाए हैं, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हो. हम अपनी ज़रूरतों को देखते हुए चीज़ों को जब बनाते हैं तो वो ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं. ह्यूमन एनवायरनमेंट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल एनवायरनमेंट. हम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के. हम नेचुरल के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. हम लेकिन अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए उसे हम यूज़ में लाते हैं. जैसे ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, लेकिन उसको काट के कहीं ना कहीं हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसके पेजेस बना देते हैं, उसके घर बना देते हैं. तो ये हो गया आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट. Then this influence decides the lifestyle, occupation, dress, food habits and nature of habitats of human beings. Means अगर डेजर्ट में जो पर्सन रह रहे हैं वो वहाँ के हैबिटेट को देखते हुए अपना रहन सहन अपना लेते हैं. कश्मीर की जगह अगर है ठंडा इलाका तो वो अपने आपको उस जगह के हिसाब से मैनेज कर लेते हैं. तो ये कहलाता है इन्फ्लुएंस डिसाइड्स द लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन. ड्रेसिंग सेंस अलग हो जाती है, रहन सहन अलग हो जाता है. ह्यूमन का एनवायरनमेंट को देखते हुए, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए इंसान बदल के उस चीज़ में सर्वाइव करना शुरू कर देता है. So here completes this chapter, our environment. I hope you liked this video, and for any doubts you may ask in comment box.